I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 का साल जहां इस लिहाज से खुशाइंद है कि इसमें पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शंस मुनक्किद हुए जो कि बार बार डिले किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में। वहां 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंफ्लिक्ट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 39 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जात फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाज़ दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाबिया साहिब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। कीजिएगा। हम कर लेंगे, that's our problem. All right. Right now I'm addressing the international media and that's why I'm going to be talking in English. The second half of the presentation is going to be in Urdu and Simabia will present. The first slide, आप जरा देखिएगा जो हमें we got 1.25 million votes in Karachi and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left slide लेके देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, NQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in
in violation of Article 92 of the Election Act, just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats, and the ECP stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3, and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115, and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan, and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000, and in the end, they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button फंस गया? जी, I know. Please, आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment, and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document. The graph, please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Toba Tek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. Aage jate jaiye ji. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Simabia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a down of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much.
Thank you so much, Shandana. Thank you, जी. पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं आपको नज़र आएंगी. इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नज़र आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक. मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया. स्लाइड नंबर 2 प्लीज. रेहाना आपा, दी ग्रेट, माशाल्लाह, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता. रेहाना साहिबा रात तक वन कर रही थी माशाल्लाह. मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली. कैन आई हैव ये ऑन? ओके, आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज़्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट्स थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफ़ी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद. 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे. थैंक यू शहरियार भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन. आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शानदाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहाँ से वन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई. तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो हैं वो जीत गए. और इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए, और इस तरह से हसन साबिर जो हैं वो सुबह जीते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. शुएब भाई एक्सक्यूज मी, आई कांट सी द स्क्रीन. थैंक यू. ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली. नेक्स्ट. दी ग्रेट अयाज अमीर साहब, कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह. बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे. तो ये रिगिंग है. इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़ जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में, कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतज़ार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA 164 मलिक एजाज,
वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA 11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK 72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया। माशाल्लाह, ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA 40 के मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पर जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज, ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2, जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए RO ऑफिस के सामने। इसके अलावा अपने विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और कितनी इस वक्त कितने इश्तियाल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी। NA 57 एंड 56 में ये प्रोटेस्ट किया था। कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो दैट उसके बाद है, मैं कोई बता रही हूँ डिफरेंट जगह पे। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो धांधला किया गया है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सलमान अकरम राजा साहब, वो प्लीज यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिकॉर्ड दे रहे थे इन्हें
सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? कहते हैं भाई साहब पहले कहते हैं। हेलो सलमान साहब का रिक्वेस्ट है कि इधर माइक पर आए, यहाँ पे सब बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है। कहा है ना यार, आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। मान ली भाई, मान ली, आपने मनवाई है। सिमाबिया इसके बाद NA 163 ले लीजिएगा। जी इधर ही होगी, एक कॉर्डलेस और दें, कॉर्डलेस टुकड़िएगा उधर से। हम अब कर दें 51 मरी। सर आ जाएं। थोड़ा सा डिसिप्लिन, हेलो जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात आपकी यहाँ आमद का। रखने दे, ये बैठ जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English. सर आ जाए So that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, खामोशी, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud.
This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that with the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket. People underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush. And they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I'd gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February.
Now, nobody could have recreated these forms in 3 days. We find every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। Thank you so much सलमान भाई। Now next, यहाँ हम अपनी request है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मजबूती में तो जंग लड़ी है। अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ। Please, Alima Appa, thank you so much, and Uzma Appa, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब हैं वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा पीछे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब, प्लीज। Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA 58? NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया।
The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. मैं नहीं था, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The Forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirafzal bhai. Thank you so much, Ayaz, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड हमें नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी. और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी. घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया.
मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा असद से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डट, खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वो युवती थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तलक नहीं था, मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा असद के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये मांझी के सारे फॉर्म 45 350 ये मांझी के 350 रीजन, एक मांझी ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी मांझी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा असद को, इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी, बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बक्से से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गई, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा असद साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदना सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा असद भी लाए अपने 45 फॉर्म, और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो।
हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। असन आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे ज़मीन डाली थी। असन इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है, असन इकबाल डीपीओ ने ज़मीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फ़ख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें। तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात यह है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट जो साहिबान जिन्होंने अपना अज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफ़ा फिर ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाए हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर लें तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज़ बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी, अब हम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फोरम चेयर जमान और स्पीच की है रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है जी। हेलो फोरम चेयर जमान और रविस्तान जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफ़ा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट्स हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों के कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खा गए और हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम जमाना जो सियासी जमात MQM जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, TLP चौथे नंबर पे, और MQM जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया, 1300। NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था जी जी आई नो जी। सो NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए, 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि RO नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा RO जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची, कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है, यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट थे, 47 में आपको कितने वोट थे। सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये ROs और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरबनिस्तान थे, हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप सैफुल रहमान साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुल रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल के जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं वो ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है पर मबनी है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि
डायरेक्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा, मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया। और कराची अन्य 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसरा मेरा अच्छा मैं सुना दिया, मैं अपने हल्का बोल देता हूँ। मेजर ताई साहब ये ले उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद आसिफ ज़की साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। और फिर हमारे इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करेंगे इस्लामाबाद। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA 50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए, मेरे RO को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक HC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहाँ लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए, हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कैंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो, वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कैंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, मेरी बारी है, अपने साथ तुम चलानी इस है। जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी है, अपनी वीडियो चलानी है। मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN बेटे इसके बाद मेरी बारी है, वीडियो चलानी है, वीडियो चलानी है। और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सुहेल जो कि नूर लीग का था। मलक सुहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से भी जो 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर, थैंक यू और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। बस नहीं इधर मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन, ये तीनों SMDs खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, सारे। शाबाश, जल्दी हटें। बिस्मिल्लाह नजर आ रही, खाली करें स्क्रीन, बिस्मिल्लाह। मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग, हेलो नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह। स्क्रीन से नीचे उतरे आपका हेलो 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 हेलो
बस साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो 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 मैं स्टेज पे चला जाता हूँ। चलिए आपको आवाज आ रही है। इसको कर लो। हेलो नहीं आप वैसे हेलो हेलो आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। हेलो एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले, ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें ये आपकी वजह से आपस भी बनाए, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे, आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा NA 163 जनूबी पंजाब बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और सहाबी भाई यहाँ पे हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल होगा। हमारी बारी चल जाएगा, हम इधर ही कम होने देंगे। अल्लाह की मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में। और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हल्का कहते थे खान साहब का वोट सिर्फ जीटी रोड पे है, आ जाएगा वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई। लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा, अल्लाह ताला के करम फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा PTI की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म 45 मौजूद है, कल दिखाया है। और ये वीडियो देखिए, मेरे हल्के की वीडियोज हैं। 48 घंटे हमारे लोग वहाँ पे रहे, DPO बहावल नगर आया, उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को और से देख ले, मैं कोई वीडियो 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। उन्होंने DPO बहावल नगर में लीड पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहाँ से तमाम रिकॉर्ड हाइड किया और मेरी जो जीत थी फिक्र भी उसे मैं जानूंगा। ये वीडियो जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर 40 फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, कौन से तरह वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710 दूसरे नंबर पे, ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे ले आए इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का नोटिस स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, खुद आर्गू किया, वहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमर डिक्टेटर जियाउल हक के बेटे का। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, इसके लिए भी टाइम है। जब जैसे चीफ जस्टिस नहीं लड़ा, मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना केस लड़ा है, मैंने जज साहब जैसे वाली बात है, मैंने वहाँ पर पुराने पाक पे हाथ रखकर बात की है। मैं कहा जज साहब आपके दादा से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कह के मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का जहाँ से इमरान खान का सिपाही जीता है, मैं हल्के वालों को भी पार्टी वालों को बताता हूँ, ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है। आखिरी सांस तक
मेहरबानी करें, सबको टाइम दें। क्या सिस्टम चल रहा है ये वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया। क्या बात है, मुझे बुलाए और इजाजत आपको बुलाए, अब तक इजाजत आप 45 दिखा दे। सबको 2-2 मिनट का टाइम दें। सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, 2-2 मिनट। सही कह रहे हैं, सबको टाइम चाहिए। प्लीज सही कह रहे हो। डेकोरम का ख्याल रखें। एक हम थोड़ा सा किसी के स्पीकर को नहीं बुलाए, शेख फरीद साहब को इनवाइट करते हैं। वी आर इनवाइटिंग शेख फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, शेख फरीद इज अ पर्सन whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is a winning candidate. His rival Amir Makam, who was formerly advisor to the Prime Minister Shahbaz Sharif, he maneuvered winning, and he will explain the original found to how his mandate was stolen. गोरे तो चले गए, लोकल रह गए, लोकल ही रह गए, गोरे चले गए भाई। वो इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। उसको हराया मैंने, मुझे नजदीक कर दे। इधर आ जाइए, इधर शॉर्ट सी बात करें, मुख्तसर। हमारा आज वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन, अगर ये समझे कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है मेरा भी ऐसी करेंगे। आपका रिजर्व है? मतलब पता करता हूँ सर, उनको कहीं एक साइड से हमारा जख्मी है और उसमें 1200 इसलिए बैठने में कोई फायदा नहीं। माइक किधर है? अली माइक किधर है? मेरे पास। Sheikh Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. 18 of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Sheikh Fareed साहब। आप आ जाए, आप जाए, बस जो स्पीच करते हैं। अच्छा, this is a copy of the FIR and these are his Form 45 declaring an unequivocal winner of this constituency. Kindly stop showing minute की बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं प्लीज। बहुत ज़्यादा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त लूँगा। तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे, हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे। 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया। हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी एमके ने किया, 1 आदमी को शहीद किया, मगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। हम इलेक्शन जीते हुए, मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ। NA 220 से फैसल मुगल साहब, वो भी 35,000 वोट से जीते हुए। इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर्स भी जीते हुए। असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ। इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता, मगर किसी इदारे ने, इन चोरों डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया। वो जिस तरह के मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया,
कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दें? और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं बनवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। शुक्रिया। Excuse me, Mumtaz Mustafa, educate candidate, he will speak. मैं अपने मोहतरम कंट्री प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 रहीयार खान 3 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर I must join IPP, otherwise my name will not be notified by the election commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊँ कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही हैं। ये उनको जितवाना चाहती है और चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट पे के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो। तो आप हजरात इसका नोटिस लें, एजेंसीज इसमें पूरी तरह क्या कर रहे हैं यार, ये किस लिए लगवाया हुआ है? थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या गफ्फार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक सालार काकड़ या गफ्फार कॉन्फ्रेंस हमारी तो चलती रहती है। पुत्र माइक खोलना पड़ेगा यार। हमारी तो सारा दिन चलती है। मैं गफ्फार खान काकड़ टीवी 41 क्वार्टर सिटी से फॉर्म 45 के 110 पोलिंग स्टेशन है। सारे 110 पोलिंग के मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ, लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर आर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं किया। मैं उसमें मुझे 2000 लीड से आया। बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चलूं, बुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया। उसमें तकरीबन 20 अरब रुपया यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट महमूद खान अचिकसाई के हक में मुस्लिम लीग नून का बेटा 3000 वोट को 27,000 किए गए, ये दानिये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं। सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बलूचिस्तान से खुसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। प्लीज एक ऊपर एक नीचे से करें यार, ये अरे को खाली अफराज पहाड़ मुझे टाइम दे, यहीं का टाइम दे। बहुत रिक्वेस्ट है सिमाविया आपसे, एक अली टॉप से और एक बॉटम से इसका चलाएं, वाइस रिक्शा चलाएं प्लीज। एनए 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम सत्ती NA 51 मरी कोटली कोहटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जैसा साहब के मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो 20,000 जीत रहा हूँ उसमें मेरे वोट 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 हैं। मेरे भाइयों, इसमें जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहाँ ज्यादा
और इस तरीके से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां पे एक आरओ है ओवैस तारड़, ही इज द वन जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है और हमें उस ऑफिस तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। कंसोलिडेशन में हमें नहीं, बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जो सरासर कानून के खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ रिगिंग इन्होंने की उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। स्वैप ओवर किए, मेरे वोट ज्यादा थे तो उसके के सामने रखे और उसके मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से 5 जगहों पे उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज किए कि जो पोलिंग का रेशो है 90% तक चला गया, जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आरओ आपस का है, वो फेक काम कर रहा है, आरोप की खिलाफवर्जी कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक सब लोगों से गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का, पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत बड़ा किरदार अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के धमकाया जा रहा है, उनसे जासूसी किए जा रहे हैं। भेजो लगा सर, मैं तो 12 नोटिफिकेशन आया दिया था पहले। नामे दुर्मे सुनने उनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई, ये चर्चा नहीं है, खामोश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ और मैं ये मरवा तो नहीं मेरी बस होने वाली है। गुजारिश ये है कि मेरा ये बस डिस्टर्ब कर दिया मरवत ने। 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, वाई पर, GMM पर मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इधर से करेंगे, ये आपने इधर से हमने करना है। पर उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 11 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। आपने माइक भी दे दिया आगे ना, हमने इस तरह माइक पकड़ लो, मैं कहता हूँ अभी कर लेते हैं, इस तरह नहीं होने देंगे। ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है, मुझे जस्टिस चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तबाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलवाएं। शुक्रिया। यहाँ पर खवातीन जिनके साथ बहुत बड़ा हमला किया गया है, मैं रिक्वेस्ट करती कि बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग कंवल शौसफ जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खवातीन की भी। थैंक यू। आमिर साहब बैठे चले गए। 166 ये उधर जाके बात करनी है। बात यहाँ का जा रहा हूँ, इधर ही कर। हम जीत चुके थे 78 राशिद साहब सारे थे। उसके बाद पूरा क्या किया जा रहा है यार? सुबह 11 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर बिठा माइक दे दे राशिद, हमें माइक दे दो। राशिद पूरी सहूलतकारी की, क्योंकि माइक ले आओ थे। तहसील या साउथ पंजाब की वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, खवातीन पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया वो लौटा है समी गिलानी। पूरे अहमदपुर शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लोटा लोटा कहते हैं। वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके हारा हुआ है। अहमदपुर शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन हार चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली नाइंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो,
अपना वो मसला था अहदेदार अपने अपना उन्नीस सीधा करके चले गए, मैनेज करना चाहिए। बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की अब वो बंद साजिश करने की के है, लिए मैं समझती हूँ, उसके तो इस खिलाफ तरह हमें ना पहले आवाज हम ये उठानी तो चाहिए। हमारे जो एनए बैठे हुए ये किस इधर किस्म का माइंडसेट हम लोगों है को कि बुलाया हमारे किस लिए? उनके साथ ये जुल्म ज्यादती की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया निकले गया। ना। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस हल्के जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने उनको जाके बताया, इवन प्रिजाइडिंग अफसर का ध्यान मौजूद है, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। इतनी खुली धांधली पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद ये माइक किधर दे दो यार। NA 148 इधर मुल्तान, NA 48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब का। मेरे हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन ये किनका बुखारी साहब का? पोलिंग स्टेशन के तमाम रिजल्ट मेरे पास मौजूद हैं और उन रिजल्ट की रोशनी में मैं 36,269 जलसा है। जीत चुका हूँ। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है तो कुरान का फैसला कर लेते हैं, अगर मैं कुरान उठाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है, अगर वो उठाता है मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आरओ ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे वोटिंग फाइल को खराब करके अनाउंस किया गया और उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर यही लगाएगा अपना अली तेरा NA 117 है ना? सारे NA वाले असल मैं तो NA 48 साहब बात कर और अली है चलो 45 पोलिंग स्टेशन आ जाओ MNS आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा हुआ नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं उसी पोलिंग स्टेशन में 45 पोलिंग स्टेशन ये बैठे भी सारे वकील इसको हमने ना बड़ा अच्छे तरह आर्टिकुलेट तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देनी, मैंने इसलिए सबके NAs के लिख लिया, नाम लिख लिया है ताकि तैमूर बैरिस्टर तैमूर मलिक फिर इसी तरह एक पोलिंग स्टेशन पता है ये आरओ ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 पोल हुए जो करवाए उन्होंने वो 1816, यहाँ पे भी 142 वोट सारे एक्स्ट्रा बना दिए। अली बुखारी अली बुखारी लिखा हुआ है ना 48 इस्लामाबाद स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली हुई अली अब्बास है, अली बुखारी अब्बास अली बुखारी सैयद मोहम्मद अली बुखारी। मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका पता है। मैं ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 नहीं, मैं अली भाई की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अली भी जानते हैं, बाहर साहब भी हैं, आप तो मैं जानता हूँ, आपको जान लिया आपके सामने केस है, मेरे ख्याल इसको जो है ना उठाएं प्रेशराइज करें 20 मिनट चारों अच्छी प्रेजेंटेशन दे के 2 मिनट आपको बोलने दें, वहाँ से वो फोरम इधर ले लेना। तो मैं तो एक कट वो तरह खो के ले आए यार, माइक फाड़ लिया तो भाईजान नंबर नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। नहीं 2 मिनट नहीं माइक दे दे वापस, माइक दे दे और पीपी पंजाब की मैं निकाल रहा हूँ, हम तीनों इलेक्शन जीते हैं, हमारे पास माइक दे दो, माइक पकड़ो बस, कोई एक पॉलिटिशियन नहीं आ रहे, इन लोगों ने अपनी बात ध्यान दी और बदमस्ती की है और उसके बावजूद हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया। आपने शुरू हो जाना आरओ के साथ किसी अंदर ही नहीं जाने दिया, इतनी बड़ी धांधली नहीं कि धांधला हुआ, आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ, ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में ऐसे हुआ है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमानत है। मैं इनको बोलता बंद करूँगा आप जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़, मैंने शबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आजमों को अफजाल अजीम पार्ट ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फौज भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी
और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया और मुझे, मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रख दी। मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूंगा, और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है। जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज़्यादा से। तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। ये जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट मत छोड़िएगा, सेनेट में रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। तो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म चेक हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। अली बुखारी साहब, मैं PP 95 चिन्योट शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है कि हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NA के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NA 94 से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी केसर शेख के मुकाबले में रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब ये पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। अली साहब अली बुखारी खबर कर दें, इस्लामाबाद से 2 चले गए। इसलिए प्लीज आप लोग जो हमारे बाकी सूबे हैं, हमें एक्स फाटा से अभी जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करना है काइंडली। जी हेलो उससे वो जी हेलो, ये पीछे वाले बंदे ने जाती की यार, हम क्या लेने आए हैं? लाहौर में बैठा हुआ चले गए, तीसरा लाहौर में मैं जा रहा हूँ, उठ के बाद फिर आप लोग कर ले। फिर हलफ उठाता हूँ यार, सारे लाहौर में लोग इधर बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 उन्होंने बनाए हैं। मैं उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है उन्होंने सारा झूठ, फ्रॉड और शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज़्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में। 261 पोलिंग स्टेशन थे। ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुका है, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालिफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA 48 ये पाकिस्तान की वह सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे उन्होंने भी पटिशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक खारिज पे चौथे नंबर पे उन्होंने भी पटिशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो 45 वो आपस में मैच करते हैं।
इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से और जीते थे चले गए क्योंकि हमने पिटीशंस करनी है, वो दोनों भी जीत चुके हैं। के सारे लोग 46 और 47 यही ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने भाई कोर्ट ये लाहौर के लोग बैठे हैं यार, सारे लाहौर के इधर इसलिए और आगे भी आज जो सुबह पिटीशन जाएगी सीट के वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवारान बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तोकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे हैं NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफुल खुलूक खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के जो एक बात कर लेता हूँ ना, कर लेने दो, बात करने। मोहम्मद मदनी साहब, जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमजा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें जदोकोब किया और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहाँ इन्होंने ऑपरेशन किए हमारे आरओ के दफातर पर। आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवारान थे इनको जदोकोब किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर ने ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में नवाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में मरियम आ रही है, लाहौर में हमजा शरीफ आ रहा है। ये तमाम सीटें जो हैं लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर ज़दोकोब कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है और इस पर इंशाल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान के 4 पसमानदा शामिल है। वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला, मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया और जो चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे उनका जो है इन्होंने रिजल्ट चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की यही जो है आवाज़ है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म से वहाँ से इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान को आवाज़ सारे प्रोटेस्ट वाले इन्होंने लीड घटाई है 26,000 मगर मैं 64,000 इकट्ठा करके ना सारे
काइंडली थोड़ा सा प्लीज वो जितना है चेयरमैन तरीके से जिसके वोट जाएंगे 31,000 से कम करके बदली 11,000 कर दिया और एमपी के वोट थे 6,010 वोट दिए ऊपर से जिसको 20,000 शुरू किया और मुझे खैरात में सीट दे रहे हैं आप इस पूरे निजाम के ऊपर कोई पलट देता हूँ मैं सीट को और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसालें के बाद अमीर लोग सामने आए हैं एमपी के भी लोगों से कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीर चाहता है तो आजो इधर ही आओ लो ये नोट आजो 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 इधर आजो 50,000 की लीड से डेरा गाजी ये है ना माँ बाप को पता है इलेक्शन लड़ना था लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उनके लिए रास्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे तो फिर एक माँ मैदान में आई हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पर इलेक्शन लड़ा मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे चौधरी निसार अली खान गुलाम सरवर खान और एक और आज़ाद उम्मीदवार थे मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे 1:30 बजे नताज आना बंद हो गए मैं आरओ के ऑफिस गई उन्होंने मुझे अंदर नहीं सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88 है इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरओ के ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पे बैठ जाते हैं पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पाकिस्तान से 5190 से गो अहेड मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए मेरे अगेंस्ट मनसब डोकर नून लीग का था उसका 42,000 था मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर हाशिम खान वो 39,000 की लीड से जीते मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आलों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए एहतजाज हुआ अंदर खलाई मखलूक और टीसीओ साहिबा और डीपीओ तीनों हमारे पास आए एक ही बात पे रट थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डेड करवा लें तो हम आपका नोटिफिकेशन कर देते हैं लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना खत के साथ है हम पीटीआई के साथ और रहेंगे मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा एमएनए रहा है इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए शर्म करनी चाहिए और वो एक पीटीआई के अंदर से स्पाई से हारे हैं और फिर उसके बावजूद पिटाई से अपनी कामयाबी का वो कर रहे हैं मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी मेरी अपील हुई है कोई अदालतें नहीं सुन रही खुदारा हमारी चीजें थैंक यू सो मच थैंक यू और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उस पर चले जाएं वहाँ सीट्स जो है वो वेकेंट है वहाँ बैठ जाइए क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही अभी मीडिया ने बताया है इससे प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए काइंडली लेफ्ट साइड थैंक यू माइक दे दे इधर और मैं उनके बिहाफ में उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को उनके वोट खाली 28,000 है हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आरोप के साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करने आई हूँ थैंक यू ओ यार माइक इधर दे लो यार अच्छा इधर लो यार माइक दो
पहले इधर माइक दे दो यार। बात करता हूँ यार, अच्छा बात करके आप हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब इधर आओ, मेरी जगह पे आओ। इधर ही बैठ जाए, ऐसे करके थोड़ी सी जगह ले लो ना, आगे बैठा लो, इनको एडजस्ट कर लो। तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे स्टेज से नीचे जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार उदा खान शावानी हल्का पीपी 43 क्वेटा बलूचिस्तान से। क्वेटा पीपी 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कौम परस्त और पश्तून कौम परस्तों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब्बे वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली